I may have had one viral hit, but it still doesn't compare to a मैं रहूं या ना रहूं. I think अमाल और मेरा जो एक मिशन रहा है from the beginning, whether it's Bollywood music or whether it's independent music, हम लोग का एक छाप रहना चाहिए. I already have 300 songs out there, but I still feel I've only just begun. So Arman, guitar proposal, what's happening? Ashna, I love you. I love you so much, and I'm going to sing this song for you right now. Ho ho ho, freedom, freedom, garage. Today, talent किसी भी तरह express किया जा सकता है. You guys were one of the originals. Youngsters who are supremely talented. बहुत roads बनाए तुमने. So earlier it was just a highway with 5 singers. Correct. Or maybe 10. You guys were the new breed that came in. You all were an in-between breed. Let's put it that way. When people were figuring out whether they will be able to break the monopoly of the big singers, या फिर उसके बाद कोई नया talent अगर आएगा तो तोड़ पाएगा. फिर तुमने जो एक sabbatical हल्का फुल्का सा लिया, बहुत सारे और भी आ गए. The current music world that is there has so many singers. और सब अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स पर, खुद के लेबल्स पर सब बहुत कर रहे हैं. Correct. इज इट अ हेल्दी एनवायरनमेंट राइट नाउ? सब लिव एंड लेट लिव कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा हो गया? I think it's firstly, I want to just give a high and big hug to all the listeners out here. Correct. बहुत टाइम बाद मैं सलील के साथ बात कर रहा हूँ. So lots of love to you as well. सुबह आज जल्दी उठा दिया इसको. नहीं, मैं 7 बजे उठ जाता हूँ. Really? Arman is a changed man. वो सब तो चेंजेस की बात होगी. होगी, of course. But I think it's a beautiful environment right now for musicians. I feel ये जो एक environment है ना, मैं बहुत सालों से इस environment मतलब की खोज में था. That I hope there's a zone where independent musicians are doing their own thing. Correct. Because it's not just Bollywood music anymore. बिल्कुल. It's music from anywhere and everywhere. And आज it doesn't matter whether you are a legendary artist or you're a new artist. आपका अगर गाना अच्छा है, लोगों को वो गाना अच्छा लग रहा है, it's going to be a hit. Correct. It's as simple as if they love it and they give it the support. Anyway, you could be sitting in Lucknow with a guitar and putting out a video, and maybe that video goes viral or a song goes viral. Correct. And aaj focus, I think it's on the best song. And probably, yes, sometimes amazing songs get hidden because certain songs get viral. Correct. So yeah, it also depends कि यार उस गाने को कितनी promotion मिले, कितना hype मिले. Those are also factors. तो लेट्स जस्ट गो बैक 4-5 years है ना. Yeah. तो बचपन का जो गाना हुआ था वायरल, जो 10-12 साल पहले कोलावेरी, ठीक है, वो रियल हमने समझा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायरल. Viral, correct. उसके बाद लैम्बोर्गिनी आया था जो ये रील्स उस समय टिकटॉक की वजह से वायरल हुआ था. Correct. So we started realizing, but it was a good track also. We liked it. It was a vibey track. बिल्कुल for sure. बिल्कुल. अब इशू ये हो गया है कि आपने जो लास्ट लाइन बोली ना, कैसे मार्केट किया जाता है, कैसे इसे पुश किया जाता है, कई बार हमें समझाया जाता है कि यही आजकल चल रहा है और आप ना चाहते हुए भी वो देख लेते हो. Correct. सो does it really matter anymore if a song is good? या फिर परिभाषा ऑफ गुड ही चेंज हो गई टोटल? मैं फिर भी उस आई वुड से, जैसे आपने कहा, मैं इन बिटवीन वाले ईरा हूँ. मुझे वायरलिटी की भी समझ है, लेकिन अच्छे गाने की भी समझ है. एंड आई फील कि अ सॉन्ग एट द एंड ऑफ द डे, आप जितनी भी हाइप करो, जो भी करो, गाना अच्छा होना चाहिए. Yes, of course, there are lots of viral songs that intrinsically are not great songs per se. जब आप निकालोगे all the gems of our industry or the music industry, you won't count them as those gems. Correct. लेकिन उस मोमेंट के लिए वो सबसे बड़ा गाना हो जाता है, whatever it is. But I feel कि वो जो गाने होते हैं जो वायरल हो जाते हैं ना, उनमें एक उसका जो पीरियड होता है या ईरा होता है, वो बहुत छोटा होता है. इट्स नॉट गोइंग टू बी एवर लास्टिंग और एवर ग्रीन सॉन्ग. लाइक आई डोंट थिंक एनी ऑफ द लाइक आई मे हैव हैड वन वायरल हिट, बट इट स्टिल डजंट कंपेयर टू मैं रहूं या ना रहूं. आज भी लोग मुझे बोल दो ना जरा, मैं रहूं के लिए जानते हैं. So I wouldn't want to ever trade a good song versus a viral song. But yes, I would love that a song goes viral, because today that is what is the name of the game. तुम्हारी सोशल मीडिया एंड योर स्किल्स एंड ऑल द थिंग दैट योर कनेक्शन विद द फैंस, जो तुमने बहुत इन्वेस्ट किया था समय से, हम इतना टाइम बात करते थे इसके बारे में कि यू टेक टाइम टू आंसर ईच पर्सन, और आज वो आपकी जो करेंसी है, वो अर्मानियन करेंसी जो आपकी है, Correct. वो बहुत स्ट्रांग है एंड वो रियल है. तो आई थिंक कि क्या है ना, आज लोग गानों को फेमस कर रहे हैं और वो बहुत मोमेंट्री है. आई डोंट थिंक द आर्टिस्ट दैट आर सिंगिंग और रिलीजिंग दो सॉन्ग्स आर गोइंग टू बी रिमेंबर्ड आर्टिस्ट्स. आई थिंक इट्स अनलेस दे उनके जो बाकी के रिलीजेस है उस वायरल हिट के बाद वैसे एक लेगेसी छोड़े. करेक्ट. कि यार लोग उनको जानेंगे 10-15 years hence.
आई थिंक अमाल और मेरा जो एक मिशन रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग, वेदर इट्स बॉलीवुड म्यूजिक और वेदर इट्स इंडिपेंडेंट म्यूजिक, हम लोग का एक छाप रहना चाहिए म्यूजिक इंडस्ट्री। वो तो 2 साल में ही कर ली थी तुम लोग। एक्चुअली इट्स वेरी ट्रबलसम, तुम इतने यंग हो और तुम्हारी लेगेसी ऑलरेडी है। आई एम टेलिंग यू सलील, हम लोग बात कर रहे हैं, आई ऑलरेडी हैव 300 सॉन्ग्स आउट देयर, बट आई स्टिल फील आई हैव ओनली जस्ट बिगन। And I'll tell you something, one of the biggest things that happened 6-7 months back, I remember sending a voice note अरमान को। मैं संजीव ली बंसाली साहब के साथ बैठा था and he was talking about singers and वो नाम जो ले रहे थे classically trained और वो अलग अलग singers थे and his eyes lit up when he heard about your name also। और वो होते हैं ना कुछ as an actor भी आप उनकी फिल्मों में काम करना चाहते हो, he is very tough to work with also, बहुत चीजों के लिए वो Perfectionist। हाँ वो सिंगिंग में भी बिल्कुल। और मुझे इतना अच्छा लगा था जब मैंने आपका नाम उसमें देखा था। आई नो दैट यू नो फॉर मी आई हैव ऑलवेज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स दैट वी हैव अराउंड। मैं ऑलवेज अरिजीत और आपकी तुलना एक साथ करता था, यू नो दैट इज वेल, एंड लोग भी बहुत करते थे। बट व्हेन दीस काइंड ऑफ एफर्मेशंस हैपन, जब बड़े बड़े लोग जो दिग्गज माने जाते हैं, करेक्ट, मतलब गुलजार साहब जब सपोजिंग तुम्हारे साथ गाना करेंगे, यू नो विशाल भारद्वाज बोलेंगे एंड ऑल। फॉर मी आई ग्रेजुएटेड द डे संजय सर कॉल्ड मी टू द स्टूडियो, क्योंकि मेरे लिए क्या था कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम I'll tell you, पब्लिक परसेप्शन ये था अरमान बहुत सिंपल गाने गाता है, उसका अरे वो पॉप स्टार है, अच्छा दिखता है, दैट्स व्हाई वो whatever टिनी बॉप पसंद करती है। But actually people don't know that you know I can sing a lot more than I probably have. Correct. Because क्या हो जाता है जब आप एक गाना गाते हो which is a lightweight, nice, romantic, soulful song, लोग आपको उस जोन में ही जानते हैं, पहचानते हैं, because you do 100 songs in that zone. Correct. तो लोग सोचते हैं आप वही गा सकते हो। लेकिन I think when say a Salim Suleiman challenge me and make me sing songs which are out of my comfort zone or something that I actually sing but किसी ने ट्राई नहीं किया है, Correct. तो संजय सर ने मुझे एक गाने के लिए गालिब होने के लिए जब बुलाया था, so I think for me I was like okay, I feel like किया है यार मैंने कुछ to even enter a studio। Can you get nervous in front of him? मतलब I've never seen you really nervous ever. अरे उस दिन पे ना यूजली मैं रिकॉर्डिंग्स के लिए ना, जिस दिन पे रिकॉर्डिंग होता है उस दिन मैं इतना कुछ रियाज वियाज नहीं करता, मैं जाता हूँ रिकॉर्ड करके आ जाता हूँ। उस दिन सीधा 7 बजे सा लगाया मैंने आज संजय सर की रिकॉर्डिंग है, दैट मीन्स आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट, बट टू बी ऑनेस्ट ही वाज द मोस्ट लविंग पर्सन आई हैव एवर वर्कड विद। लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी umpteen number of like stories कि यार लिसन मतलब बहुत डेंजर जोन है वो। लेकिन when I entered the studio and he was like अरे तू अब तक छुपा हुआ कहाँ था, ऐसे क्यों नहीं, मतलब how did I not hear you sing like this? Correct. And काफी लोग कहते थे कि यार you should try अरमान, I was like हाँ maybe, but मैंने उसको वैसे गाने गाते हुए सुना नहीं है। I was like sir, since because you're trying, you know now, so I hope that this sets the ball rolling for people to try me in a different zone, because I genuinely can. I would call myself a chameleon, to be honest. यार एक्चुअली स्पीकिंग ऑल्सो, अरमान ने जब पहली बार इंग्लिश भी गाया था, मैं उसको अक्सर ये बोला था कि बहुत सारे इंडियन सिंगर्स जो होते हैं गाना पसंद करते हैं, सुर मैच हो जाता है, लेकिन ये जो कमेलियन शब्द यूज किया है, तुम अंग्रेजी गाने अंग्रेजों की तरह गाते हो, ये भी बहुत जरूरी है। यू नो समटाइम्स दैट डेफिनेशन इज नॉट देयर विद एवरीबॉडी। मेरा वो साउथ इंडियन गानों के साथ भी है, जब मैं तेलुगु गाना गाता हूँ या तमिल गाना गाता हूँ, आई वांट टू मेक श्योर कि यार वहाँ का जो एक लोकल बंदा है उसको ऐसा ना लगे कि यार हिंदी सिंगर ने गाया है, करेक्ट, एंड आई एम ओनली लिसनिंग टू इट बिकॉज वो एक अच्छा बॉलीवुड सिंगर है, करेक्ट, but he has to listen to it क्या है अपना तेलुगु वाला बंदा गा रहा है, and that's what has happened, that acceptance has happened in each of those languages, and मेरा वही कोशिश था कि यार I sing it like a local, it shouldn't seem like oh मैं try कर रहा हूँ to sing in Telugu और try कर रहा हूँ to sing in English। These views यार, ये बुटा मम्बा ये सब जो आते हैं, हाँ, I mean you've always been viral since बचपन, but is there like a threshold? अभी तो बुखार हो जाना चाहिए था, वायरल इतना नहीं वैसा नहीं। Tell me that, do you feel excited यार जब एक ऐसा कोई नंबर आता है? हाँ, भाई इस बार अच्छा हुआ। मुझे अभी वो अच्छा, which song in the recent past you got damn excited कि यार ये see I would say I didn't expect Butta Bomma to fado, yeah to be honest। really? नहीं, क्योंकि मैं ना I sing 30-40 तेलुगु तमिल कन्नड़ा songs in the year, अच्छा, तो मेरे लिए वो जजमेंट है नहीं कि यार कौन सा गाना सुपर हिट है कौन सा नहीं, बिकॉज ऑल ऑफ दो सॉन्ग्स आर अमेजिंग, करेक्ट, सो आई सैंग देम। मेरा हर दिन का आज रिकॉर्डिंग डे है, तो आई डिडंट रियली डिफरेंशिएट कि यार बुट्टा बॉमा अलग है और ये गाना अलग है। फॉर मी आई सैंग देम एज व्हाटएवर, आई गो एंड सिंग, डू माय थिंग एंड गो। बाद में जब उसका एक इम्पैक्ट आया, एक्चुअली व्हेन टिकटॉक जब था इंडिया में, तब शिल्पा शेट्टी
and all these there was that cricketer Warner who did a dance on Butta Bomma, and then it just went viral and went out of proportion. So I didn't expect that to happen. I knew the song was good, but I didn't know it was going to photo like that. And then Allu Arjun had his own moment as an actor, be it with Ala Vaikundapuramlo, then pivoting to Pushpa. Pushpa later. So I think even pre-Pushpa, because there was so much hype around Allu Arjun also, the song just catapulted to another level. So अब मैं कुछ usually मेरे को ये views and streams ना इतना हिला कुछ नहीं देते दिमाग में, because to be honest I've seen those things happen for me. But yes, when it happens out of surprise कि यार अरे I didn't expect this song to do, मतलब like I was not like यार ये चलेगा नहीं. I always feel like these songs will do well. Correct. But ये कुछ monstrous hit हो गया. Correct. Where Hindi listeners also like अरे आपका वो बुट्टा बॉम्बा गाना बहुत अच्छा है. I'm like भाई आपको समझ भी नहीं आया. How did you even understand and how did you vibe it? Like music is music. जबरदस्त जबरदस्त. जब से तुमने अनाउंसमेंट किया that you're no longer single, so congratulations. कैसा फैन फॉलोइंग? How are the messages? Heartbreak messages more या फिर happy messages No, more? actually lots of happy messages. And थोड़े से मतलब थोड़े शॉक में हैं अभी भी. तो ये समझ नहीं आया कि Actually क्या किसी हुआ. को ये भी लगा होगा कहीं कोई प्रमोशनल वीडियो या वो सब तो नहीं है क्या? नहीं वो एक्चुअली यूजली काफी सिंगर्स ऐसे करते हैं कि यार प्रमोशन के लिए कुछ कर दिया, लेकिन दिस वाज एन एक्चुअल मोमेंट एंड गाना मैंने उस मोमेंट के लिए बनाया था. सो आई मीन इट्स बिन 6 years दैट आई हैव डेटेड आज सारे गड़े मुर्दे बाहर निकल रहे क्लासेट से. काफी लोगों को ये भी नहीं पता था that I was dating someone because I had kept it super under the radar. But yeah, I mean मैंने जब ये जो गाना है कसम से मैं अमल के पास गया पहले, बड़े भैया के पास. मैंने बोला भाई this is something I'm going to do. I want to propose to Ashna. तो I said कि यार I really want to make a song. And I want, if I'm a singer and I'm proposing, if I'm not singing a song, then why am I? Brought down. What am I doing? Yeah. So I sat down with. So tell me 1 second. Yes. You really only first thought of this song because of the proposal? Yeah. This मतलब was वहां से ही गाना बना नहीं था. नहीं, मैंने सोचा था कि भाई I have to propose to Ashna, but I have to do it with a song, and it has to be the best song that we make together. Wow. Full pressure. Full. तो अमल के साथ बैठा, and Amal and Kunal are like my क्या कहते हैं, my biggest angels and my strength. उनके साथ मैंने बहुत सारे घर से निकलते ही चले आना, and to you, which is that Hindi version of you. So I mean they've just been my really biggest strengths and pillars in music. तो मैंने उनको एक रूम में बिठाया, मैंने कहा कि भाई ये सीन है. ठीक है, अभी I need you guys to help me put together the best soundtrack to this is what's happening. So Amal and Kunal went a little crazy because firstly उन्होंने expect नहीं किया था कि मैं ये बॉम्ब फेंकूंगा. फिर गाना बना, एंड मैंने मेरी तरफ से जो एक लाइन थी कि यार जब एक बंदा प्रपोज कर रहा होता है, सो व्हाट इज द एसेंस ऑफ इट? इट्स अ प्रॉमिस that I promise to be with you for the rest of my life and honor this love and this relationship that we have. तो वो promise जो word था, वो मैंने सोचा कि यार कसम से ये एक element होना चाहिए. तो एक word मैंने उनको छोड़ दिया. I left them with this, and then they made this beautiful song कसम से, and cut to talking like a film. cut to 2 महीने बाद I was in London for a month. मैं बहुत सारे songwriting sessions कर रहा था, and I happened to be, she happened to be there with me on that trip. I was like, चलो, अच्छा, यहाँ पे ही कर लेते हम. And what did she say when you sang the song for her and तो played it for सब? बेस्ट पार्ट है कि उसको वो गाना समझ नहीं आया उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे शी वॉज गोइंग थ्रू मल्टीट्यूड्स ऑफ इमोशन. शी डिडंट इवन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा क्या है. बाद में जब सब कुछ हो गया, मैंने भाई ये एयरपोर्ट्स है, प्लीज लगा लो, गाना सुन लो प्लीज. उस मोमेंट में वो ओवरवेल्म हो गई थी. सो शी रियली डिडंट फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग. शी वाज अरमान गिटार प्रपोजल, व्हाट्स हैपनिंग. Listen now, so before we sing this song, मैं are you planning? जिस तरह तुमने ये गाने के लिए प्लानिंग की है, तो शादी बेशक कई साल बाद हो, तुमने तो ऑलरेडी कासल जो ढूंढ लिया होगा भाई. मैं बहुत बड़ा प्लानर हूँ. अच्छा. ऑनेस्ट ना, मेरे 10 साल प्लान हो चुके. अच्छा. बाय द वे, इसलिए मैं इतना दूर आ पाया हूँ एज अ पर्सन, टू बी वेरी So now I'm asking you right now, brother, हाँ. castle, हाँ? hill,
country, North Pole, South. इतना सब डिटेल नहीं देने वाला मैं, इतने अभी तो मिला हूं मैं, स्टोरी अभी बाकी है मेरे दोस्त. But ये गाना, this incredible song, and जैसे कि it is not a promotional thing. But let me tell this out to Yeah. everyone listening to this. This song कसम से is my most honest song. मैंने इससे honest गाना कभी भी नहीं बनाया और निकाला है. This is कैसे कहते हैं लोग, है ना, आपने क्या महसूस किया ये गाना गाते हुए? लोग पूछते ना हर गाने के लिए, भाई इसमें पूरा दिल है मेरा, पूरा दिल, सोल, एवरीथिंग इट इज. आई थिंक मोस्टली आर्टिस्ट्स इन द वेस्ट टॉक अबाउट व्हाट दे गोइंग थ्रू इन लाइफ. Correct. इंडिया में कभी नहीं करते ऐसे सब चीजें. obviously. ये मेरा सबसे पहला गाना है जो मैं कह सकता हूँ कि यार मैं प्यार में पूरा 0 to 100 डूबा हुआ था while singing this and making this. And huge shout out to Amal and Kunal for making the best gift for me as you know, as elder brothers. Yeah. उन्होंने they have given me the best creation of theirs for And me. huge shout out to Ashna. Ashna तो we are अभी He's on air right now. He's talking about if she's hearing. Ashna, I love you. I love you so much, and I'm gonna sing this song for you right now. I love it. कसम से तुझसे जो प्यार हुआ, दिल हद से पार हुआ, क्या जाने यार हुआ. कसम से हूँ मैं रुका हुआ, तेरी ही गलियों में, सड़कों पे, रास्तों पे अब इंतजार हुआ. रहूं होश में या बेहोश हूँ, तुझे सोच के मुस्कुराता रहूं. कहे जो मुझे मजाकों में तू, वो बातें मैं सच मान लूं. कसम से, कसम से, कसम से तेरा हूँ सबसे कहूँ. कसम से, कसम से, कसम से बिन तेरे अब ना जीऊं. कसम से, कसम से तू जब से याद हुआ, सब तेरे बात हुआ, ये अपने आप हुआ. कसम से ये भी कमाल हुआ, ढूंढा जिसे मैंने ख्वाबों ख्यालों में, वो मेरा आज हुआ. जो हो बात ये मेरे हाथ में, तो मैं हर जन्म में तुझे मांग लूं. जहां से कभी चला जाऊं मैं, समझना तेरे साथ हूँ. कसम से, कसम से, कसम से तेरा हूँ सबसे कहूँ. कसम से, कसम से, कसम से बिन तेरे अब ना जीऊं. कसम से, कसम से, कसम से तेरा था तेरा रहूं. कसम से, कसम से, कसम से बिन तेरे अब ना जीऊं. कसम से. Hi everyone, this is Arman Malik and you're watching Radio City.